एंड उन्होंने क्या कहा है कि आप मेरे पास आओ, मेरे चीफ ऑफ स्टाफ बनो, सैलरी मत लो, मुझे 20 लाख रुपया दो। एंड ही वॉज बीइंग sarcastic और ही डिडंट मीन इट और द जोक डिडंट लैंड। आप ये भी तो देखिए कि उनके बोर्ड और डायरेक्टर्स पे जो लोग हैं, दे आर एक्चुअली MBAs। आई एम परफेक्टली फाइन, परफेक्टली प्राउड एंड परफेक्टली रेडी to defend my actions. Good evening everybody, my name is Rahul Suri and I call myself your MBA Sherpa. And ये जो MBA है, इसके ऊपर सवाल उठाया है मिस्टर दीपेंद्र गोयल ने। Obviously you must know who Mr. Dipendra Goyal is. He is one of the most successful entrepreneurs in our country. He is the leader, founder and CEO of Zomato. He has come out and said something which has created kind of a discussion online. And उन्होंने क्या कहा है कि आप मेरे पास आओ, मेरे चीफ ऑफ स्टाफ बनो, सैलरी मत लो, मुझे 20 लाख रुपया दो एंड मैं आपको किसी भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से 10x ज्यादा लर्निंग कराऊंगा एक साल में। अब obviously anybody who has half the brains knows that he was half joking, he was being sarcastic, ironical, trying to be funny, trying to create some hype on social media. All of that is valid, absolutely it is. And let me be very clear, I don't think ये उनका ट्वीट है अपडेट, आई एम लुकिंग फॉर अ चीफ ऑफ स्टाफ, और उसमें उन्होंने ये कहा है, देखिए इसको, 10x मोर लर्निंग देन अ टॉप टियर मैनेजमेंट स्कूल। ठीक है, ये उन्होंने कहा है। आई एम 100% इन एग्रीमेंट विद हिम कि ही वॉज बीइंग sarcastic और ही डिडंट मीन इट और द जोक डिडंट लैंड। एंड वो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, वेयर ही हैज शेयर्ड दिस DM with one of his ex-employees, somebody he knows, कि thanks for defending the idea. Hopefully 1 out of 100 people got what I meant, जो उनका जोक था, आयरनी थी, sarcasm था, whatever. And between you and me, we will not eventually ask for 20 lakhs. And उसके बाद उन्होंने एक अपडेट में ये भी क्लैरिफाई किया, something like this only be pulled off once now that everybody knows the real intent. I really hope that pay the company to get a job doesn't become a norm. And basically he has tried to clarify what he meant. ऐसा होता है सोशल मीडिया पे, लोग जोक करते हैं, it doesn't land and then उसको डिफेंड करना पड़ता है। I am not here to pass judgment on whether that was the right social media tactic to create hype and stuff like that. But 20 लाख रुपए वो मांग रहे थे। उस 20 लाख रुपए मांगने के ऊपर बहुत सारे ट्वीट्स आए, उनको मैंने यहां पे नहीं दिखाया जबरदस्ती, लेकिन उस ट्वीट्स में क्या था, किसी ने बोला ये इलीगल है, किसी ने बोला यार अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, बहुत लोगों के बहुत सारे पर्सपेक्टिव थे। उसमें से जो पर्सपेक्टिव मैंने आपसे डिस्कस करने के लिए चूज किया है वो ये है कि क्या एक्चुअली में being on the job in a place like Zomato, which is supposed to be a startup and a hustle culture, do you actually learn more things than you would in a top tier management institute or a decent MBA college? That is what I want to tell you. अब सवाल ये है, Zomato वाले दीपेंद्र जी बोलेंगे यार कि मैं तो नहीं हूं MBA, मैं तो चला रहा हूं इतनी बड़ी कंपनी, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि उनके बोर्ड और डायरेक्टर्स पे जो लोग हैं, दे आर एक्चुअली MBAs. One of the earliest investors in Zomato was actually the CEO of Info Edge, who is an IIM Ahmedabad LMS. So ऐसा तो नहीं है कि IIM Ahmedabad या other MBA colleges की दीपेंद्र गोयल जी वैल्यू नहीं करते. That is not the point. The point is not to create a furrow or create a जबरदस्ती का disagreement. The point is to distill down that what is the value of an MBA. अब ये जो मैं आपको MBA की वैल्यू बता रहा हूं, इसमें मैं आपको सबसे पहले क्या बताऊंगा, इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि बॉस मेरे पास आओ अनअकैडमी में एंड पढ़ाई करो, ये कोड यूज करो RS8, और मैं आपको ये कोर्स बेच रहा हूं और मैं ये कोर्स आपको प्राउडली बेच रहा हूं। क्यों? क्योंकि फ्री में क्वालिटी का कुछ भी सामान नहीं मिलता। इफ यू हैव टू prepare for MBA with the best mentors in the best way possible for CAT 2025 यहां पे और all the other exams, there is no better place, there is no better constellation of experts and mentors that you can get. And now that I have told you कि मैं कुछ सेल कर रहा हूं आपको, let me be very clear, I am selling this proudly, I am not selling this sheepishly. समझ में आ रही है आपको मेरी बात? देखिए, MBA करने का क्या मतलब है? MBA करने का मतलब है you understand, you create an understanding of business. बिजनेस कैसे चलता है? It runs on commerce, it runs on money. मैं जो कर रहा हूं वो मैं कुछ हद तक पैसे के लिए कर रहा हूं, आप जो कर रहे हैं, आप जो MBA की तैयारी कर रहे हैं वो काफी हद तक आप पैसे के लिए कर रहे हैं। सो देयर इज नो शेम, देयर इज नो कि यार आप सेलिंग कर रहे हैं। इंडिया में ये बड़ी मेंटालिटी है कि मुझे कुछ बेच रहा है।
अरे कोई दिक्कत नहीं है, बेच रहा है, अगर मैं आपको कुछ बेचूंगा तभी कुछ खरीदूंगा। ऐसी इकोनॉमी बढ़ती है, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है पीपल गेट आउट ऑफ पॉवर्टी, दिस इज द वे द वर्ल्ड इंप्रूव्स। समझ में आई आपको बात? तो कभी भी अगर आपको कोई बोले या कोई मुझे कमेंट में लिखे सर आप कोर्स बेच रहे हो, आई डू इट प्राउडली। आई एम नॉट सेलिंग यू समथिंग दैट आई डोंट बिलीव इन, आई एम सेलिंग यू माई ओन क्रेडिबिलिटी। सो आई एम परफेक्टली फाइन, परफेक्टली प्राउड एंड परफेक्टली रेडी टू डिफेंड माई एक्शंस। ठीक है, अब कमिंग टू द मेन पॉइंट, एमबीए वर्सेस द लर्निंग यू गेट ऑन द जॉब। लेट मी बी वेरी क्लियर, पर्पस ऑफ एन एमबीए क्या है। अब यार इसमें मैं आपको बहुत सारा ज्ञान दे सकता हूं कि लेट्स से कोई इंजीनियर है, अपनी जॉब से खुश नहीं है, वो अपना फील्ड बदलना चाहता है, वहां जा सकता है, ये एक तरीका है सोचने का। या आपके पास अपॉर्चुनिटी कम है, रिक्रूटर्स वांट एमबीए का टाइटल और एमबीए का डिग्री इन योर क्या कहते हैं रेज्यूमे, फेयर इनफ, कोई गलत बात नहीं है, ये सब वैलिड रीजन है। पर क्रक्स क्या है, मेन बात क्या है, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। और उस पर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है अनस्ट्रक्चर्ड वर्ल्ड। मान लीजिए आप एक इंजीनियर हैं, ठीक है, मान लीजिए आप एक सिविल इंजीनियर हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड टेल यू, आई विल वेजर कि मोस्ट ऑफ द सिविल इंजीनियर्स ऑफ द वर्ल्ड हु वर्क फॉर बिग कंपनीज, a lot of them, I would say a very high percentage of them actually spend most of their time on contract negotiations and contract forming. In fact, it is one of the major parts of a lot of civil exams as well. So idea क्या है कि आप कुछ भी फील्ड में हो, business is an essential part of your survival. आप लॉजिस्टिक्स मैनेजर हो सकते हैं, आप रिटेल मैनेजर हो सकते हैं, आप मार्केटिंग रन कर सकते हैं किसी बड़ी फर्म के लिए या किसी कंसल्टेंसी के लिए, कुछ भी हो, बिजनेस इज असेंशियल। क्यों बिजनेस इज असेंशियल? क्योंकि अ सिंगल पर्सन कैन नॉट नो एवरीथिंग, यू नीड एक्सपर्टीज फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। व्हेन पीपल लेंड यू देयर एक्सपर्टीज, दे एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। एंड वो एक्सपर्टीज क्या है? वो एक्सपर्टीज है अनस्ट्रक्चर्ड वर्ल्ड में कैसे काम करें। लेट्स से यू आर पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री कॉल्ड शिपिंग। शिपिंग से ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड, ज्यादा दिमाग लगाने वाली इंडस्ट्री वर्ल्ड ओवर लॉजिस्टिक्स जो है, उसके बारे में आपको कुछ जानना है, उसका कुछ पार्ट आपको जानना है। पर वो जानने के लिए अगर आप बॉटम से शुरू करेंगे, ऊपर तक पहुंचने में देयर विल बी अ लॉट ऑफ टाइम। उससे अच्छा क्या तरीका है? इफ यू गो टू एन एमबीए स्कूल, लेट्स से एमबीए स्कूल विच स्पेशलाइजेस इन ऑपरेशंस, एंड यू गो एंड लर्न ऑपरेशंस एंड लॉजिस्टिक्स विच विल इंक्लूड ऑब्वियसली shipping and stuff like that, you can learn that much faster. I am not saying you will learn everything in MBA और आप एकदम से कल को खुदा बन जाओगे, that is not my point. My point is that acceleration will hold you in great stead. You can actually jump stages. That is number one. Second thing that is very important about MBA is tools are universal. एक्सेल शीट बनाना जो है, अगर आप अपनी खुद की शॉप चला रहे हैं और उस पर आपको जीएसटी का कैलकुलेशन करना है कि आप ज्यादा कम टैक्स पे नहीं कर रहे, एक्सेल शीट आपको सीखना बहुत जरूरी है। आजकल हर शॉप में फिनटेक वाले अपने जाके बेचते हैं कि बॉस हमारा अकाउंटिंग सॉल्यूशन ले लो, हमारा ये ले लो। वो सब जो कर रहे हैं, वो जो दुकानदार है, इवन रनिंग अ स्मॉल शॉप नीड some kind of knowledge of tools. And the idea is कि MBA teaches you a lot about using tools. And I am not just talking about Excel. I am talking about using frameworks. I am talking about consulting frameworks which you can use to understand how a business is supposed to run. You can understand a lot of marketing related mathematics. Statistics is very, very important. आपको लगता है अगर marketing is all about copywriting and about doing ads, that is but just 1 or 2 steps in marketing, maybe 10-15%. But consumer analysis में इतना stats लगता है, इतने tools लगते हैं, that it is very important to understand. अगर आप रिटेल किसी बड़ी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर से मिलेंगे, he spends more time on studying कि क्या SKU बेचूं rather than studying कि मैं मार्केटिंग का कैंपेन क्या करूं, क्योंकि that is almost as important as just the marketing on TV. सो मैं ये कह रहा हूं कि जिस टाइप के टूल्स आप सीखते हैं, उनको पिकअप करना बहुत जल्दी इज वेरी डिफिकल्ट। अब अगर आप जोमेटो में चीफ ऑफ स्टाफ बन गए दीपेंद्र गोयल जी के, यू आर अ स्मार्ट गाय, यू विल लर्न फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, यू विल अंडरस्टैंड, बट व्हाई इज इट कि एक स्ट्रक्चर तरीके से सीखना इज बीइंग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। क्यों कर रहे हैं ऐसा लोग? वो लोग इसलिए कर रहे हैं, उसके अलग अलग कारण है। हो सकता है पीपल थिंक दैट एमबीएज आर एंटाइटल्ड, हो सकता है IIM अहमदाबाद से जो पास आउट है वो बोल सकता है यार मैं IIM अहमदाबाद का पास आउट हूं तो मैं गली गली जाके साबुन नहीं बेचूंगा, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। In all the major MBA colleges that I know of, I have friends of, I have studied at IIT Bombay, there is a deep realization that what we are reading, we are acquiring tools, we are acquiring knowledge, but on the ground जो experience है that is almost as valuable, and इन दोनों को connect करके जो हम कर पाएंगे, जो हम deliver कर पाएंगे, that is valuable। तो जो entitlement की feeling है
MBAs में लोग बोलते हैं यार IIM वाले एंटाइटल्ड होते हैं या IT वाले एंटाइटल्ड होते हैं, वो कुछ लोग हो सकते हैं, बट दैट इज देयर पर्सनालिटी टाइप. यू शुड नॉट स्टीरियोटाइप और जनरलाइज थिंग्स. थर्ड थिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज, जो पॉइंट मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, कॉमर्स, बिजनेस, मर्केंटिलिज्म. मर्केंटिलिज्म जो था, जब देयर वाज कॉलोनियल पीरियड, सी ट्रेड वगैरह होता था, एट दैट टाइम कॉमर्स वाज कॉल्ड मर्केंटिलिज्म. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वेरी सिंपली दिस, दैट द वर्ल्ड रन्स ऑन कॉमर्स. ठीक है, until unless somebody is part of a government funded laboratory जिसमें कुछ भी बिजनेस नहीं है, हालांकि उसमें भी आपको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देख के लैब इक्विपमेंट ये सब लेना पड़ेगा, अगर उस चीज को छोड़ दें, एवरीथिंग इज अ बिजनेस. डोंट यू थिंक कि जिस हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट वगैरह होता है, बी ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बी इट ए प्राइवेट हॉस्पिटल, व्हाट इट इज, उसको रन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए. उस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कर रहे हैं, सबकी सैलरीज टाइम पे जा रही हैं, इक्विपमेंट टाइम पे आ रहा है, हम ज्यादा पे ऑफ तो नहीं कर रहे, क्या चीजें हमको और करनी है, ये सब क्या है. दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज अ बिजनेस सेंस, दिस इज अ कमर्शियल सेंस. अच्छे से अच्छा, दी मोस्ट वेल थॉट आउट, दी मोस्ट वेल इंटेंशन थिंग इफ यू वांट टू डू, यू नीड टू हैव सम एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्स, अदरवाइज इट वुड बिकम डेड. सो ये सोचना कि कॉमर्स है या MBA है, ये इसलिए it is thought of or frowned upon a little bit. I don't agree with that at all. Next, बैच प्लस नेटवर्क. अब मैं आ रहा हूं एक्चुअल MBA पे. अभी तक आप बोलेंगे सर आपने इतनी कहानी कर दी, ये तो यार हमको पता है, वो जोमेटो वाला भी तो बोल रहा है यार ये सब मैं सिखाऊंगा आपको. बट बैच प्लस नेटवर्क, जब आप किसी अच्छे MBA स्कूल में जाते हैं, व्हाट यू फाइंड फर्स्ट इज, यू थिंक कि मैं हीरो हूं, बाकी सब भी हीरो हैं. IIM अहमदाबाद बैच के बैच में, IIT बॉम्बे के बैच में, कैलकाटा में, JBIMS में, FIMS में जितने लोग आएंगे सब स्टड्स आएंगे. ठीक है, और उनसे जो आपकी लर्निंग होगी ना, दैट इज गोइंग टू बी अनमैच्ड. वो अलग अलग प्रोफाइल से आएंगे, कोई कॉपीराइटर होगा, कोई लॉयर होगा. आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स MBA कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हॉस्पिटल बिजनेस हैज बिकम अ बिग बिजनेस. इट इज एक्चुअली अ बिजनेस जिसको रन करने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ एक्सपर्टीज बोथ इन बिजनेस बट ऑल्सो इन द मेडिकल फील्ड. सो द आइडिया इज कि वो जो बैच और नेटवर्क है और जो डाइवर्सिटी है, आई एम नॉट सेइंग कि जोमेटो में स्मार्ट पीपल नहीं होंगे, ऑब्वियसली स्मार्ट पीपल होंगे बिकॉज इतनी बढ़िया कंपनी चल रही है. द आइडिया इज दैट द वेराइटी ऑफ पीपल यू गेट, द वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड यू गेट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लोग MBA के फर्स्ट ईयर में एंटर करते हैं, दे आर एट द कस्प, एकदम हाई होते हैं अपने एम्बिशन पे. IIM अहमदाबाद के गेट्स में जो एंटर करता है, IIT बॉम्बे के गेट्स में एंटर करता है, दे आर लुकिंग टू अटैक द वर्ल्ड, एंड एट दैट टाइम व्हेन यू आर कंपीटिंग विद देम, the kind of adrenaline rush you get, the kind of push that you give yourself is unmatched. इसीलिए जो first couple of trimesters वगैरह होते हैं MBA कॉलेज में, they are so tough because the competition is so tough, and that is what grows you as a person. अच्छे MBA colleges don't let you relax, at least in the first year, and that treadmill goes on. You have to think on your feet, you have to think about a marketing assignment, about a finance experiment. ये सब जो चीजें सीखनी है, ये आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है. तो जो हसल कल्चर आप किसी स्टार्टअप में फाइंड करेंगे, वही हसल कल्चर, वही ट्रेडमिल, वही स्पीड, वही सोचने का तरीका आपको फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट पुश किया जाता है. सेकेंड ईयर में जाके अ लॉट ऑफ पीपल गेट यूज्ड टू द हसल, पीपल गेट यूज्ड टू द पेस, तो इट बिकम्स ईजियर. इट इज नॉट ईजी बट इट बिकम्स ईजियर. लेकिन जो फर्स्ट ईयर होता है, दैट यू so much learning happens in that condensed period that I think it is just a joy to experience that part itself. Last but not the least, opportunities. मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि यार जो रिक्रूटर्स हैं वो देख रहे हैं कि MBA की डिग्री, वो कारण नहीं होता. लेकिन आप सोचिए कि जो बंदा इस जॉब के लिए एक्चुअली सिलेक्ट होगा, दीपेंद्र गोयल विल सिलेक्ट समबडी फॉर दैट जॉब. आप सोचिए कि इफ ही इज नॉट एन MBA, which he most likely would not be because he has perfectly written कि 10x में आपको ज़्यादा सिखाऊंगा, तो assume कि वो MBA नहीं है. अब उसको जो एक्सपीरियंस होगा, that would always be limited in the sense कि एक कंपनी के बाद एक टाइप का वर्क कल्चर. I am not saying that there would not be people that he cannot learn from. He will, and he or she would learn a lot of good things. But the idea is that the opportunities that he will get, let's say post that 1 year, obviously given everything that he performs and stuff like that, that will be limited in scope as compared to opportunities that he can get after an MBA. And ऐसा क्यों है? आपका जो बैकग्राउंड है प्लस आपकी जो स्टडी है, उन दोनों को मिला के
आपको अपॉर्चुनिटी सेट मिलेगा. लेट्स से यू कम फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड एंड यू गो एंड स्टडी एट एफएमएस और यू गो एंड स्टडी एट IIM बैंगलोर. ऐसी जगहों पे जाके जो आपको मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, दोज वुड बी मच वाइडर. लेट्स से आप एक कॉपी राइटर थे, आप एक इंजीनियर नहीं थे, आप एक क्रिएटिव इंडस्ट्री में थे, उसके IIM बैंगलोर या एफएमएस के कोर्सेज से देन यू विल लर्न कि हाउ एक्चुअली मार्केटिंग कैंपेन्स आर डन एंड स्टैटिस्टिक्स आर सच अ बिग पार्ट ऑफ इट. देन आपकी मार्केटिंग की नॉलेज पूरी होगी. अब आप एक चार्टेड अकाउंटेंट है, आपको ऑडिट में बहुत एक्सपीरियंस है, बट जब फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात आती है, तब जिस टाइप के फाइनेंशियल मॉडल्स एक्सेट्रा बनते हैं, जिस टाइप का इन डेप्थ आपको इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, वो एक सीए को अपने कोर्स से नहीं होगी या ऑडिटिंग से नहीं होगी. जब वो उसको सीखेगा एंड कंबाइंड विद अकाउंटिंग नॉलेज एंड द फाइनेंस नॉलेज, द ब्रेथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट ही कैन एक्सेस आर लिमिटलेस. सो द आइडिया इज कि एमबीए क्या करता है. एमबीए इज अ फनल टू द वर्ल्ड. एमबीए आपको बहुत सारी चीजें दिखाता है. यू लर्न फ्रॉम योर प्रोफेसर्स, यू लर्न फ्रॉम द कॉलेज, यू लर्न फ्रॉम द बैच, यू लर्न फ्रॉम द रिक्रूटर्स, यू लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स. द आइडिया इज द कंडेंसेशन. जो आप किसी और जॉब में 5, 6, 7, 8 साल में एक्सपोजर करते, वो आपको 1 या 2 साल में करता है. सो दैट इज द पॉइंट ऑफ एन एमबीए. इस पूरी जो मैंने पीपीटी बनाई है छोटी सी, उसमें मैं कहीं आरओआई की या फीस की या पैकेज की ये सब की बात नहीं कर रहा हूं. अपना सवाल है फंडामेंटल. फंडामेंटल क्वेश्चन है कि एमबीए की वैल्यू कहां से डिराइव होती है, और एमबीए की वैल्यू यहां से डिराइव होती है. वर्ल्ड इज ड्रिवन बाय कॉमर्स, वर्ल्ड इज अनस्ट्रक्चर्ड, यू नीड गुड टूल्स, यू नीड टू बी ट्रेन्ड वेल, एंड आपको अपने साथ के लोगों से भी उतना ही सीखना है जितना आप अपने प्रोफेसर से और बुक से सीखते हैं. That is the whole idea of an MBA. So the purpose of this video is not to make a furrow or create an argument with somebody who is obviously much more famous, much more accomplished than me. I am not into that business. The point is simple कि MBA के ऊपर जो आजकल लोग सवाल उठा रहे हैं ना, वो मेरी समझ में नहीं आता है. वो मेरी समझ में इसलिए नहीं आता है, आप इंजीनियर हैं आईटी के, आप किसी बड़ी कंपनी में ब्रिज बनाने चले गए, यार कॉन्ट्रैक्ट तो दोगे ना लोगों को, कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज तो समझोगे ना. कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज एक्चुअली, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कैसे होते हैं, एमबीए का एक मेजर पार्ट है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स, नॉट द लीगल लैंग्वेज बट एटलीस्ट द डायनामिक्स ऑफ हाउ कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क. ये सब चीजें सीखोगे ना यार. तो द आइडिया इज कि यू कंडेंस दैट लर्निंग इन अ 1 or 2 year period, and that is what an MBA does. It is an accelerant, it is a catalyst, and that is extremely important in your career growth. तो ये थी मेरी छोटी सी बात. दीपेंद्र गोयल जी को मैं ये नहीं कहना चाहता कि सर आप गलत हैं या ऐसा कुछ नहीं है. मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको दे रहा हूं कि एमबीए इज, इट्स नॉट अ श्योर शॉट, और एमबीए करके आप कोई खुदा नहीं बन जाएंगे, आप सब कुछ सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है. बट द एक्सीलरेशन दैट यू कैन गेट इन योर करियर इज एब्सोल्युटली अनमैच्ड. दैट इज माय आर्गुमेंट. आई होप यू एग्री विद द आर्गुमेंट. If you do, and even if you don't, whatever your argument might be, whatever your perspective might be, I want to hear that. Put that in the comments downline. Just be respectful. अब मैंने इतना एमबीए कर दिया, थोड़ा सा मैं बेच भी लेता हूं. कैट 2025 के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बोल चुका हूं बहुत बार. 2024 में जो पेपर आया उसमें सबसे ज्यादा लोगों को रिग्रेट किया था कि वी डिड नॉट स्टार्ट अर्ली, वी डिड नॉट कवर ऑल द कॉन्सेप्ट. ज्योमेट्री के 1-2 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे जो कि ऐसे हो जाते. तो इसके लिए क्या है, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली. क्यों स्टार्ट अर्ली? बिकॉज इन द 1 year पीरियड यू विल लूज सम स्टीम. आपको कुछ ना कुछ सेटबैक मिलेगा. इसलिए द अर्लियर यू स्टार्ट, द हायर द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल नॉट फेल टू कवर द एंटायर सिलेबस. वेरी इंपॉर्टेंट. जैट, कल हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं जहां पे ZAT is very very important. ZAT is the Xavier's Aptitude Test. One of the best colleges in India, XLRI, admits students only through that exam. A host of other colleges accept ZAT scores. But ZAT की जो importance है, just the test की importance क्या है, वो मैं कल आपको बताऊंगा. Please come and listen to that. I will tell you something that will blow your mind off. That is very important. And उसके बाद CMAT. CMAT this year is happening in the middle of January, I think January 25th. It's happening much earlier than it used to because the CMAT authorities want that CMAT score is being accepted, should be accepted by more and more colleges, and that is why we have very less time to prepare for CMAT, and we are starting a new batch for it. Come and join us, and all of these offers are available to you by using the code RS8. MBA करना है कि नहीं करना है? MBA करना है. क्यों करना है? Do you agree with me or you don't agree with me? Whatever it is, I want to hear from you. Put it down in the comments. See you soon.